السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شکاری کو آپ جانتے ہیں جو مچھلیوں کا شکار کرتا ہے۔ جو شکاری مچھلیوں کا شکار کرتا ہے تو وہ جال پھینکتا ہے، اور اس جال کے اندر کچھ چیزیں شکاری ایسی رکھتا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھ کر مچھلی جال کی طرف آتی ہیں، بس وہ چیزیں صرف دکھانے کی ہوتی ہیں، وہ مچھلیوں کو کھانے کے لیے نہیں رکھی جاتی بلکہ مچھلیوں کو دکھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں، جیسا کہ مچھلی اس کو دیکھ کر جال کے قریب آئیں گی تو پھنس جائیں گی۔ اسی طرح جب مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹے لگاتے ہیں تو کانٹے کے اندر بھی کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر مچھلی پاس آئے، مچھلی اس کو کھائے لیکن کھا نہیں سکتی ہے۔ جیسا مچھلی اس کو کھانے کے لیے منہ آگے کرتی ہے اور اس کانٹے کو اپنے منہ میں لیتی ہے تو بس ختم، مچھلی کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ایک شکاری مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے کانٹے کا استعمال کرتا ہے، جال کا استعمال کرتا ہے اور کچھ طرح طرح کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو اسی طرح ہمارا شکاری شیطان ہے۔ شیطان بھی ہم کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ شکار کرنا چاہتا کیا ہے؟ شیطان نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو شکار کر لیا ہے، اور کچھ کانٹے اور کچھ جال چھوڑے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کا شکار کرتے رہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے معاشرے کے ہیرو اور ہیروئن، اور موویز، گانے، فلمیں، ڈرامے، ایپیسوڈ اور ویب سیریز، یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں مسلمانوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے۔ شیطان کے سب یہ جال ہیں۔ تو ابھی جیسا کہ ایک مووی ہے پشپا، جو مووی آئی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک ایسا جنون ہے اس مووی کو دیکھنے کے لیے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک عورت وہ مووی دیکھنے کے لیے گئی تو لائن میں لگی ہوئی تھی سنیما کے اندر جانے کے لیے، تو ایک دم ایسا ہڑکم مچا اور اتنی بھیڑ وہاں پر لگ گئی کہ اس بھیڑ کے اندر کچل کر مر گئی وہ عورت، اور ایک جگہ 2 بچے مر گئے۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی باہر کی بات ہے، ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے کہ ایک عورت مر گئی دب کر کچل کر، اور 2 بچے کچل کر اور دب کر مر گئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے یہ پوچھیں گے کہ کس حال میں موت ہوئی، کس طرح مرے، تو آپ خود سوچیں کہ ان کے پاس کیا جواب ہوگا۔ اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ مسلمان اپنا پیسہ حرام جگہ لگا رہے ہیں، اور حرام جگہ پیسہ لگا کر خوش ہو رہے ہیں اور اپنے اوپر فخر کر رہے ہیں، فخر محسوس کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں فلاں مووی دیکھ کر آیا، فلاں مووی دیکھ کر آیا۔ حالانکہ یہی جو مسلمان حرام جگہ پیسہ لگا رہے ہیں، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری بستی میں ایک مسجد ہے، تمہاری بستی میں ایک مدرسہ ہے، تمہاری بستی میں ایک بیوہ ہے، ایک غریب ہے، ایک مسکین ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، بیچارہ محتاج ہے، اس کی مدد کرے، تو یہ آدمی 10 روپے نہیں دے سکتا۔ 10 روپے دینے کے لیے اس کی جان حلق میں آ جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے 10 روپے اگر مانگ لیے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری پراپرٹی اور پوری دولت اور پورا گھر اور پورا کاروبار اور پوری دکان ہے، پوری اس کی گاڑی جو ہے وہ مانگ لی ہے 10 روپے دینے کے لیے۔ لیکن یہی آدمی جو حرام جگہ پیسہ لگاتا ہے تو پھر اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو پیسہ آپ نے مووی دیکھنے پر لگایا ہے، یہ حرام جگہ آپ کا پیسہ لگ گیا، یہ پیسہ ہی آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ قیامت کے دن یہ پیسہ آپ کے خلاف گواہی دے گا، کیونکہ مووی دیکھنے کے لیے سنیما ہال کے اندر آپ گئے اور آپ نے پشپا مووی دیکھی اور آپ نے پیسے دے دیے مووی دیکھنے کے لیے، وہ پیسے اب آپ کے جمع ہو گئے، وہ پیسے آپ کے اب جمع ہو گئے۔ یہ پیسے کل قیامت کے دن آپ کی گواہی دیں گے، آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ مجھے حرام جگہ استعمال کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ بھی سوال کریں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا تو آپ چاہے جواب دو یا نہ دو، لیکن یہ پیسہ خود آئے گا، خود جواب دے گا کہ مجھے اس نے حرام جگہ استعمال کیا ہے۔ تو آپ اپنے پیسوں کو حرام جگہ استعمال نہ کریں۔ اور رہی مووی کی بات، دیکھو مووی اور فلمیں، ڈرامے ہیں، ان میں ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، کوئی بات سچ نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، لیکن آج کل مسلمانوں کو جھوٹ پسند ہے، آج کل مسلمانوں کو جھوٹ پسند ہے، سچ پسند نہیں ہے۔ کوئی آدمی سچائی اپنے بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں ڈرامے باز ہے، ڈرامے کر رہا ہے، لیکن مووی کے اندر سب جھوٹ ہے، ساری چیزیں جھوٹی ہے۔ وہ ہیرو جو اس کی ہیرو گری ہے وہ بھی جھوٹی ہے، جو اس کے جو کارنامے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، ایک بات سچ نہیں ہے۔ لیکن اب ہمیں جھوٹ میں مزہ آتا ہے، جھوٹ ہمیں کوئی بات بتائے، جھوٹ ہمارے سامنے کوئی سنائے، جھوٹ بولے خوب، دنیا بھر کا جھوٹا کوئی آدمی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا بھر جتنی بھی مووی ہیں سب جھوٹی ہیں، اس میں کوئی جو ہے سچائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج ہمیں سچائی پسند نہیں ہے، ہمیں جھوٹ ہی پسند ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پشپا مووی دیکھی ہے وہ یاد رکھیں کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے
तुम दुनिया से छुपा सकते हो, मैं पुष्पा मूवी नहीं देखा, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला से नहीं छुपा सकते, अल्लाह को मालूम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो सारी बातों को जानने वाला है, वो हर वक्त हमेशा हमारी निगहबानी करने वाला है, हमारी निगरानी करने वाला अल्लाह है। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की खातिर छोड़ दें। अब अगर तुम ये कहते हो कि हमें उनसे मोहब्बत है या उसको हमसे मोहब्बत है, इसलिए मैं तो बारहा ये कहता हूँ, अगर उसको कोई भी हीरो है, अगर उस हीरो को तुमसे मोहब्बत है, या ये अल्लू अर्जुन है, अगर पुष्पा मूवी वालों को तुमसे मोहब्बत है, सच में मोहब्बत है, तो तुम ये कहो कि ये मूवी फ्री में दिखाओ, पूरे हिंदुस्तान में फ्री में दिखाओ, मालूम हो जाएगा। ये आप खुद ये तजुर्बा करें कि आप किसी सिनेमा हॉल के अंदर जाएं और आप ये कहें कि जब इतने सारे लोग गए हैं, इतने सारे पैसे आपने जमा कर लिए हैं, मुझे अकेले को फ्री में जाने दो, मुझे अकेले को फ्री में मूवी दिखाओ। कोई आपको जाने नहीं देगा, आपको बल्कि मारा जाएगा और आपको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अगर मोहब्बत है तो तुम्हारे पैसे से मोहब्बत है, तुमसे उनको कोई लेना देना नहीं है, ना तुमसे उनको कोई मोहब्बत है, ना तुमसे कोई हमदर्दी है, ना तुम उनके कोई रिश्तेदार लगते हो। उनको अगर मोहब्बत है तो तुम्हारे पैसों से मोहब्बत है। पैसे लेकर जाओ, मूवी देखो, लेकिन अगर पैसे लेकर नहीं गए तो तुमको बाहर भगा दिया जाएगा। अब इसलिए आपने बाज़ लोगों को देखा होगा कि वो हीरो की एक्टिंग करते हैं, हीरो की नकल उतारते हैं, हीरो की कॉपी करते हैं, जो मूवी देखने के लिए जा रहा है, जो उसमें हो जो हीरो है उसी की तरह बनकर जाता है। लेकिन जो आदमी उसकी तरह बनकर गया, उसकी कॉपी कर कर गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा वो हीरो है, उसको भी फ्री में नहीं जाने दिया जाता, वो भी फ्री में अंदर नहीं जा सकता, वो भी फ्री में मूवी नहीं देख सकता, बल्कि उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कितनी मोटी सी बात है, इतनी मोटी सी बात है, ये अकल में आने वाली बात है और समझने वाली बात है कि हर अंधा, काना, लूला, लंगड़ा, बहरा भी इस बात को समझ सकता है कि अगर उसको मोहब्बत होती तो तुम्हें फ्री में जाने देता, लेकिन तुम्हें फ्री में मूवी दिखाने को तैयार नहीं है वो आदमी। उसको तुमसे कैसी मोहब्बत है? उसको तो मोहब्बत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पैसों से मोहब्बत है। और मैं मुसलमानों से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि जो हीरो, जिन हीरो के लिए तुम जान दे रहे हो, जिन हीरो के लिए तुम जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और ये अल्लू अर्जुन के लिए तुम ये कह रहे हो कि मैं जो पहले दिन का पहला शो देख कर आया, फर्स्ट दिन में मूवी देख लिया, फर्स्ट दिन जो पहले दिन ही मैं पुष्पा मूवी देख लिया, जो हीरो है ये तुम्हारे मामले में क्यों नहीं बोलता है? अब संभल के अंदर 5 लोगों की वफ़ात हो गई, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कुछ बोला ये? अब अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, इसके मुतालिक जो है क्या जो है तूफ़ान बरपा है, आपको भी मालूम है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसको मंदिर बताया जा रहा है। ये जो अल्लू अर्जुन है तुम्हारा हीरो, ये उसके मुतालिक कुछ बोला? तुम्हारे मुसलमानों के मुतालिक, मस्जिदों के मुतालिक, संभल के मुतालिक, अजमेर शरीफ की दरगाह के मुतालिक कुछ बोला? अगर इसको तुमसे हकीकी मोहब्बत है क्यों नहीं बोलता है? फिर इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, चारों तरफ से मुसलमानों को आज घेरा जा चुका है और मुसलमानों की मोब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, चारों तरफ मुसलमानों की नफरत का बाजार गर्म है। कुछ बोला ये अल्लू अर्जुन? कुछ बोला? या कोई भी मूवी है, कोई भी हीरो है उस मूवी का, वो हीरो कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। आपको मालूम है जब वो हीरो आपके मुतालिक, आपके फेवर में बातें नहीं कर रहे तो आप उनके लिए जान देने को तैयार हो। और इसके बरखिलाफ़ अपने मस्जिद के इमाम को देखें, जो हमेशा आपको जहन्नुम से बचाने की बातें करता है, जो आपको हमेशा जहन्नुम से बचाने की कोशिश करता है, जो आपको गुनाह पर तंबीह करता है, जो आपकी बुराइयों पर आपको रोकता है, जो आपको हर बुरे काम से रोकना चाहता है और ये चाहता है कि आप जन्नत में जाओ। एक तरफ आपका इमाम है, फिर भी आपको उनसे नफरत है। आपका इमाम जो संभल के मुतालिक बातें करता है और आपका इमाम जो अजमेर शरीफ के मुतालिक बातें करता है, आपका इमाम जो है जितने भी फसादात मुसलमानों पर, जितने भी फसादात हिंदुस्तान में हो रहे हैं और जितने भी मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, हर जुल्म के लिए तुम्हारा मस्जिद का इमाम बोलता है, अपनी आवाज़ बुलंद करता है, चाहे उसकी आवाज़ कहीं तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन कुछ बोलता तो है। लेकिन उसके बरक्स एक ये हीरो है जो तुम्हारे फेवर में कभी नहीं बोलता है। चाहे सारे मुसलमान मर जाएँ, सारी मस्जिदें ख़त्म हो जाएँ, सारी दरगाह ख़त्म हो जाए, सारे मदरसे ख़त्म हो जाए, लेकिन ये हीरो जिससे तुम मोहब्बत करते हो ये एक अल्फाज बोलने को तैयार नहीं है। ये एक अल्फाज नहीं बोलेगा कभी अपनी ज़बान से, पूरी ज़िंदगी में ये नहीं बोलेगा कि भाई मुसलमानों पर जुल्म मत करो, मस्जिदों को मत गिराओ, मस्जिदों के अंदर मंदिरों को मत ढूंढो। और अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, वहाँ पर कोई मंदिर तलाश ना की जाए। कभी किसी हीरो की ज़बान से आपने ये बात सुनी है तो बताओ? लेकिन फिर भी उससे इतनी मोहब्बत है, एक मस्जिद का इमाम है उससे इतनी नफ़रत है, हालांकि वो तुम्हें अच्छी बात बताता है, उसको तुम्हारी फ़िक्र है, तुम्हारे काम आता है, तुम्हारी बात मानता है और हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे गम को अपना गम समझता है, तुम्हारी परेशानियों को अपनी परेशानी समझता है। तुम्हें अगर कोई परेशानी आ जाती है तो तुम्हारे वास्ते तुम्हारी मस्जिद का इमाम दुआ करता है, तुम्हारे जो रिश्तेदार मर जाते हैं उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करता है, आपके वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है। और एक ये है, इसको कोई तुमसे लेना देना नहीं है,
इसको सिर्फ तुम्हारे पैसों से मोहब्बत है, लेकिन समझ में नहीं आता फिर भी तुम लोगों को उनसे क्यों मोहब्बत है, आखिर क्या वजह है। और अफसोस हो मुसलमान नौजवानों पर, लड़कियों पर, लड़कों पर कि वो खूब खुलेआम मूवी देख रहे हैं। अभी आप खुद देखेंगे जो मूवी, जो बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं वो सिनेमा हॉल के सामने बाहर ठहरते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं आपको मूवी कैसी लगी, कैसी लगी। मैंने वो वीडियो कल देखी, कम से कम 100 लड़कियां बुरखे में जो है वो सिनेमा हॉल से बाहर आ रही हैं, 100 लड़कियां, औरतें। और जो है बाज़ लोग मैंने ऐसे देखे कि इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है और औरतें हैं बुरखे के अंदर, वो कह रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये मूवी सुपर हिट होगी, ये होगी वो होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ, शर्म आनी चाहिए। एक मूवी के लिए आप माशाल्लाह बोल रहे हो, एक मूवी के लिए इंशाल्लाह बोल रहे हो। अभी तक तो मुसलमानों को ये नहीं मालूम कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह इंशाल्लाह कहाँ बोलना चाहिए, अभी तक तो ये भी नहीं मालूम। मूवी के लिए तुम इंशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हो, अल्लाह का नाम तुम ऐसे हराम जगह इस्तेमाल कर रहे हो। जो मुसलमानों के दुश्मन है, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह माशाल्लाह इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म करें। बुरखे के अंदर जा रही है लड़की, और बुरखे के अंदर लड़कियां जा रही हैं, और माँ बाप को कोई खबर नहीं है कि मेरी लड़की कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। और ये तो अकेली लड़की है, बल्कि मैंने तो ये देखा कि पूरी फैमिली के साथ, मुसलमान बुरखे में औरत है, आदमी है, उसके बच्चे हैं, पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने जा रहे हैं मुसलमान। अब ये मुसलमान जो अपने बच्चों के साथ मूवी देखने जा रहा है, कल को क्या ये आदमी अपने बच्चों को नसीहत कर सकता है? क्या लगता है कि आपके बच्चे आपकी नसीहत कबूल करेंगे? क्या आप उनको कोई अच्छी बात बता सकते हो, कोई उनकी अच्छी तरबियत कर सकते हो? ये कैसी तरबियत कर रहे हो आप कि आप अपने बच्चों को खुद जो है फिल्मों का आदी बना रहे हो। आज ये बच्चा आपके साथ जा रहा है, कल के बच्चा गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा। आज ये लड़की आपके साथ जा रही है, अभी छोटी है, लेकिन आपने इसको आदी बना दिया मूवी देखने का। कल को जब ये जवान हो जाएगी फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी मूवी देखने, और आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको तो अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए थी, लेकिन डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों को आज मूवी से, फिल्मों से मोहब्बत हो चुकी है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। गैरत मर चुकी है क्या? ईमान थोड़ा बहुत है या नहीं है? तुम क्या दुनिया में मूवी देखने के लिए आए हो क्या? कभी कुरान देखा खोलकर? कभी कुरान कभी खोलकर देखा? और अब तो ये देखा जा रहा है कि मूवी जो चलती हैं सुबह 6 बजे से चलती हैं, 6:30 बजे तो अब फजर की नमाज़ होती है बाज़ इलाक़ों के अंदर। बाज़ इलाक़ों के अंदर 6 बजे जो है, अब हिंदुस्तान के अंदर 6 बजे से फजर की नमाज़ शुरू हो रही है और 6:30 बजे तक फजर की नमाज़ होती है, पौने 7 बजे तक। अब तो ये देखा जा रहा है कि सुबह 6 बजे से मूवी चल रही है, पुष्पा मूवी जो शुरू होती है वो सुबह 6 बजे से शुरू होती है। वो मुसलमान कभी जो फजर की नमाज़ पढ़ने नहीं आया, वो मुसलमान सुबह 5 बजे मूवी देखने जा रहा है। सुबह 5 बजे, इतनी ठंड की रातों में, यहाँ ठंड लग रही है। अगर इसी नौजवान को ये कहा जाता है कि आओ फजर की नमाज़ के लिए, तो ये कहता है कि मुझे सुबह सर्दी लगती है, सुबह सर्दी बहुत है और मैं जाऊँगा तो मुझे सर्दी लग जाएगी, ये हो जाएगा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मुझे नज़ला हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया भर की बातें लगाता है। और यहाँ सुबह 6 बजे से मूवी शुरू है, सुबह 6 बजे से, और ये आदमी 5 बजे ही जो है सुबह जाकर लाइन में लग गया, टिकट की लाइन में। आज ये टिकट की लाइन में लगे हो, मूवी की लाइन में लगे हो, सिनेमा हॉल की लाइन में लगे हो, कल को तुम्हें जहन्नुम की लाइन में भी लगना है, ये बात याद रखें। इसलिए ये गुनाह ना करें, ये गुनाह हरगिज़ ना करें। अपने ईमान को ताज़ा करें, अपने ईमान को ज़िंदा करें, और इस बात का सबूत दें कि हम शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले नहीं हैं, हम शैतान के ग़ुलाम नहीं हैं, हम शैतान की बातें नहीं मानने वाले, हम तो अपने रब और रहमान की बात मानने वाले हैं। इसलिए तौबा करें। अगर आप पुष्पा मूवी देखोगे तो आप ये ना सोचो कि किसी को पता नहीं है, अल्लाह को सब पता है, अल्लाह को सब इल्म है। तो आप अपनी भी हिफाजत करें, अपने नौजवान बच्चों की हिफाजत करें, नौजवान बच्चियों की हिफाजत करें। लेकिन हिफाजत कैसे करेंगे जब घर में रात दिन मूवी चला रहे हैं, घर में रात दिन मूवी के ट्रेलर देख रहे हैं, रात दिन जो है जो नई नई मूवी आती है उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो देख रहे हैं। तो वो देखते देखते दिल के अंदर ऐसी एक लगन और दिल के अंदर ऐसी उमंग पैदा होती है, दिल के अंदर ऐसी चाहत पैदा हो गई है कि जब भी कोई नई मूवी आती है तो सबसे पहले देखने पहुँच जाते हैं। इसलिए जिस मुसलमानों ने पुष्पा मूवी देखी है, अब भी उनके पास वक्त है तो तौबा करें, लेकिन तौबा मूवी देखने से पहले करना है, मूवी देखने के बाद नहीं। और इस जुनून को ख़त्म करें। कभी नमाज़ पढ़ने का जुनून हुआ, कभी कुरान पढ़ने का जुनून हुआ, कभी किसी आलिम के पास बैठकर 2 मसाइल सीखने का जुनून हुआ। कितने हमारे नौजवान हैं कुरान पढ़ना नहीं आता है, कुरान देख कर पढ़ना नहीं आता है, देख कर भी। और लेकिन ये नौजवान ऐसा है कि ये पहले दिन पहला जो शो होता है वो मूवी का, वो देखने पहुँच जाता है। अब भी कितने नौजवान मुसलमान ऐसे खुश हो रहे हैं, अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं कि मैंने पहले दिन जो है वो अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी देख ली है, पहले दिन ही देख ली है। अपना आपको क्या फ़ख्र महसूस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई दुनिया की दौलत मिल गई है, चारों तरफ से तुम्हें मारा जा रहा है। और कितना जुल्म देखोगे तुम। अब क्या तुम्हारे घर में घुस घुस कर ये लोग मारेंगे, इज्जतों को तार तार करेंगे, जब समझोगे क्या। इसलिए अभी मौका है, सुधर जाएं, शर्म करें, अपने ईमान को ज़िंदा करें।
ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔